Distinguished members of the print and electronic media, my esteemed colleagues, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. It is with immense pride and privilege that I address you all on this momentous occasion of 61st BSF Raising Day, which will be celebrated on 1st December 2025. This day is not just a date on calendar. It is a celebration of 6 decades of outstanding valor, unparalleled dedication, and unflinching commitment to the nation, defined by our enduring motto, Jeevan Parant Kartav. As you know that this force was raised on 1st December 1965 under the visionary leadership of Founder Director General Shri K.F. Rustamji, IP. The force was raised with 25 battalions, and now this has turned into a formidable force of 193 battalions. It is giving security to the national borders, 6,400 kilometers of international borders with Pakistan and Bangladesh is being guarded by this force. Besides that, the force has also done extremely well in quelling various menaces all in the country. That is to say, in Punjab, the anti-militancy operations, controlling counter-insurgency operations in northeastern states, and the terrain of the force where the force is deployed includes the snow-clad peaks of Kashmir, deserts of Rajasthan, and dense forest of northeast. However, BSF's mandate has extended beyond the international borders. We have consistently excelled in all the operations that I have said, and a specific transformative role to anti-Naxal operations. The BSF was deployed in the state of Odisha in year 2010. Initial deployment was in districts of Malkangiri and Koraput with 5 battalions each. And thereafter we have now deployed in district of Koraput, Malkangiri, Baud, Kalahandi and Kandhmal. Besides that, for a few spells, Raigada and Navrangpur also witnessed our deployment there. With the active support and synergy of Odisha government, particularly Odisha police, the BSF has been instrumental in containing extremist influence and ushering a new era of peace and development in the state. As you know that in the year 2010 and for a long time, the cut-off area was out of our reach. It was the Naxal RIT that was running there. With our sustained operations in collaboration with the state police, it has been reduced to nil, and now you can say that it is Swabhiman Anchal. It is a proud jewel in the crown of Odisha, a beacon of normalcy and progress in the region, once synonymous with fear and violence. The influence of Maoists have been reduced, allowing the local population to join the mainstream and benefit from governmental developmental projects. On our combined operational efforts with the state police in our districts of deployment, we have yielded significant results. That includes total 86 dreaded Naxals neutralized, a total of 710 Naxals apprehended, a total of 2,508 hardcore Naxals, including Mao supporters, surrendered, choosing peace and development over violence. 566 IEDs, live bombs, recovered and defused, saving countless civilians and security lives. Furthermore, in the past 6 months alone, our strategic leadership and field units have achieved notable successes. Numerous Naxal hideouts have been dismantled, large cache of arms, ammunition and recovered, and IEDs diffused before they could inflict
harm, receiving recognition from the state government as well as civil administration alike. Specifically, during this year, we have recovered 10 IEDs, 48 grenades, 259 gelatin sticks, and various arms including 21 SBML guns and 1.303 rifle. Now, with bringing normalcy into the Cutoff region, that is to Swabhiman Anchal, now we have moved in redeployment to district Kandhmal, where we have established new COBs and are continuing with our sustained operations, which are longer duration and in difficult terrain. These operations are being targeted with specific intelligence with us, intelligence given by the state police, and particularly blocking whatever the route Naxals have been adopting to get into Odisha, either from Chhattisgarh side or from Andhra Pradesh side. So the new deployment has further weakened them to the extent that the news of surrender of Naxals you have been listening to, and now probably the target that we have got would be further reduced from 31st March to 026 to eradicate Naxalism here. I must extend my sincerest gratitude to the esteemed Director General of Odisha Police and his illustrious team of officers. Their unwavering synergy, visionary leadership, and unconditional support have not only facilitated seamless operational efficiency, but also embodied the spirit of unity and purpose. This collaborative approach is geared towards our shared ultimate objective, the complete eradication of Naxalism from Odisha by March 2026. In doing so, our commitment has been very comprehensive. Beyond the battlefield, we recognize that the greatest bulwark against extremism is the trust and prosperity of the local population. So we have conducted series of operations to win heart and minds of the people. In that context, number of civic action programs have been held, number of medical camps have been held, number of tribal youth exchange programs have been held, which brought the students, the young children for various visits to Odisha as well as beyond. As we commemorate 61 years of our service, we pause to honor those who have paid supreme sacrifice for this noble mission. Many Jawans and officers of the Border Security Force have made the supreme sacrifice in the fight against Naxals in Odisha. I bow my head with utmost reverence to our martyrs. Their selfless devotion to duty remains etched in our collective memory and serves as eternal flame lighting our path forward. While immense progress has been made, we are fully aware about the challenges remain. The rugged terrain and sporadic Naxal activities in region like Kandhmal and KKBN region division demand sustained vigilance. Our future strategy is very clear. That is, we are strengthening our operational capabilities through advanced technologies like drones and satellite surveillance. With that, we are also enhancing our intelligence sharing and coordination with state authorities and expanding our developmental outreach in that to ensure that every citizen feels secure and empowered. In that, your role has been outstanding throughout. Esteemed members of the media, we recognize your critical role. Your reporting has brought the struggles and triumphs of our personnel to the forefront, bridging the gap between the force and the people it serves. Your positive reporting and coverage channelize the masses into believing the good work that the government is doing, and the belief synergizes the whole environment, leading to growth, stability, and contentment. We extend our sincere gratitude to our partnership and unwavering support. The BSF embodies resilience, commitment, and adaptability as we march ahead, steadfast in our resolve to protect the nation
and foster development, we reaffirm our motto to Jeevan Parant Kartavya. Together, let us build secure, peaceful and prosperous India. Thank you. Jai Hind. सर, जो 31 मार्च के अंदर सारे देश में जो नक्सल को खत्म करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आह्वान दी है, तो इसी हिसाब से उड़ीसा में आपका प्लानिंग क्या है सर? उड़ीसा में कब तक खत्म हो सकता है, आपका प्लान क्या है? जो लक्ष्य हमें दिया गया है वो बिल्कुल उस पर हम पूरी प्लानिंग के साथ अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन हार्ड इंट बेस्ड ऑपरेशंस, जो जॉइंट ऑपरेशंस हमारे हैं उड़ीसा पुलिस के साथ में, एसओजी डीवीएफ के साथ में, उन सब का एक ही लक्ष्य है, जो भी नक्सल एक्टिविटीज़ हैं उनका पूरी तरीके से सफाया करना। और इसमें जो हमारी डिप्लॉयमेंट अभी रीडिप्लॉयमेंट हुई है, उसमें जो भी हमको ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं वो सब मीनिंगफुल ऑपरेशंस हैं। और आपको रिजल्ट तो आपको चूंकि आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको रिजल्ट तो पता ही है कि कितनी भारी तादाद में इस तरीके से डिस्ट्रेसिंग सिग्नल उनके मिल रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं। तो जितनी गतिविधियां सरकार कर रही है उन सबका ध्येय भी इन जो भटके हुए लोग हैं इनको मुख्य धारा में हिलाने का है। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। सीमा सुरक्षा बल और उड़ीसा पुलिस का जो संयुक्त अभियान है, बाकी बल भी ऑपरेट कर रहे हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, इस तरीके से जो सभी का संयुक्त अभियान है वो जो स्ट्रेटजिक डायरेक्शन है 31 मार्च 2026 उसको पूरी तरीके से उसके अंतर्गत उसके अंदर इसको समाप्त करना ही ध्येय है और उसी को लेकर हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो टारगेटेड हैं। उड़ीसा में हो सकता है सर ना, कुछ टाइम लगेगा क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। डिप्लॉयमेंट बहुत सघन है हमारा, और जो एरिया के ऊपर तो चीज़ मुनसर करती ही है, बट जब आपके पास इंटेलिजेंस हो तो ये दूरी कम हो जाती है। तो आज का जो इस वक्त युग है ये इसमें टेक्नोलॉजी का समावेश है। बहुत चंद एक लम्हों में पता चल जाता है कहाँ पर क्या है। और जब आपकी सुशासन की नीति हो, जब आप इस पर फोकस करें कि डेवलपमेंट हो, गांव में स्कूल हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, जो ट्राइबल बच्चे हैं उनके एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, तो हर तरीके से सरकार, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और बाकी केंद्रीय पुलिस बल जब उस ध्येय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और आज का व्यक्ति यही चाहता है कि उसका विकास हो, उसकी इनकम बढ़े, बच्चों की शिक्षा हो, स्वस्थ रहें, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो सरकार का ध्यान है वो पूरा है। और मुझे लगता है कि जो इलाका आप देख रहे हैं वो मुझे उतना बड़ा नहीं दिख रहा है। मुझे अपने लक्ष्य के साथ और जो हमारी कार्य करने की शैली है, जो बल का इतिहास है, उन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये लक्ष्य अचीवेबल है और हम इसको पूरा करके रहेंगे। 2026 तक नक्सल मुक्त करने के लिए जो फैसला लिया गया है, उस हिसाब से आपका डिप्लॉयमेंट उड़ीसा में बढ़ा है या जहाँ मतलब जितना था उतना ही? 2026 को, और आप उसको प्रिसाइज कीजिए, मार्च 2026 कहिए, तो नहीं तो फिर वक्त हमारे हाथ से आगे हो जाएगा। जो डिप्लॉयमेंट हमारा है वो बढ़ा नहीं है, बट उसको और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए जहाँ गतिविधियाँ ज़्यादा हो गई थी वहाँ पर अब हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया है। जहाँ हम पहले डिप्लॉयड थे वहाँ बहुत शांति स्थापित हो जाने के बाद अब वो बाकी बलों ने उसको ले लिया है। तो जिस प्रकार से ये रणनीति बनती जाएगी या उनकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई और संवेदनशील जगह होती है तो वहाँ पर हम रीडिप्लॉयमेंट का या बाकी तरीके की जो ऑपरेशनल गतिविधियाँ हैं उनके बारे में विचार करेंगे। अभी फोर्स बढ़ाने के बारे में ऐसा कोई निर्देश हमको नहीं प्राप्त हुआ है। जो फोर्स ऑलरेडी है, हमारी यहाँ पर 6 बटालियंस कार्यरत हैं और उनकी कंपनीज अपने अपने ऑपरेटिंग बेसिस पर हैं, तो वहाँ से ऑपरेट करने के लिए वो पूर्णतया सक्षम है। नया सीओबी बनाने के लिए कुछ प्लान है क्या वैसे, और कुछ नया एरिया जो आपको अलॉटमेंट हुआ है? नहीं, जो हमारी जो कंधमाल में डिप्लॉयमेंट हुई है उसमें नई सीओबीज हमने बनाई हैं, वहाँ स्थापना होकर के वहीं से ट्रूप्स ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत होगी
कि और भी सीओबीज इस्टेब्लिश हों, तो वो निर्णय अभी पॉलिसी मेकिंग बॉडी लेगी कि अगर उसमें आवश्यकता महसूस की जाती है तो उसको भी किया जाएगा। बट जो उपयुक्त अभी बल है यहाँ पर, उन्होंने जो परिणाम दिया है वो आपके समक्ष है। तो अभी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसी कोई आवश्यकता अतिरिक्त बलों को बुलाने की होगी। बट सरकार है, उनका निर्णय सदैव कई ऑप्शंस पर रहता है, तो अगर ऐसी कोई स्थिति हुई तो जरूर उस पर जो विचार, जो निर्णय होगा उस पर अमल किया जाएगा। सर, अभी देखा जा रहा है कि नक्सल ने नया नया वेपन यूज कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी वेपन को मुकाबला करने के लिए। बीएसएफ एक सेंट्रल एजेंसी है, तो कैसा नया नया टेक्नोलॉजी का क्या क्या ऐसा कुछ वेपन और ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी यूज किया गया है उड़ीसा में, प्लान पे या बन रहे? अगर टेक्नोलॉजी की आप बात करें तो ये जो टेरेन है ये फॉरेस्ट है। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे ड्रोन हैं, सेंसर्स हैं और इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमारे पास में उपलब्ध हैं। और जो वेपन हमारे पास में है वो भी सोफिस्टिकेटेड हैं, नई तकनीक के वेपन हमारे पास में हैं, काफ़ी समय से हैं। तो इनका मुकाबला कर पाना किसी और बल के लिए भी उतना ही, किसी और किसी और नक्सल या एंटी नेशनल एलिमेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये वेपन वो वेपन है हमारे पास में, आपको आइडिया भी होगा, यही दो सीमाएं हैं भारत की, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर यही वेपन यहाँ पर भी हैं। और आपने ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम देखे हैं। तो इस पर मैं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये कहूँगा कि बल के पास जो हथियार हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मेरे अंदाज से अभी नक्सल्स को सोचना होगा कि उनको क्या विकल्प चुनना है। नक्सल इस्तेमाल कर रहे हैं जी, वो भी बहुत आगे चले गए, नक्सल अब ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है कि जैसे कि हम बता सकते हैं कि हमारे बीएसएफ ने उड़ीसा में ऐसे कुछ प्लान किए? जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, या तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्पष्टता और दें। अदरवाइज टेक्नोलॉजी पर्याप्त अकेले में नहीं होती। टेक्नोलॉजी, टैक्टिक्स, इंटेलिजेंस, ये कई चीज़ों का मिश्रण है जब आप ऑपरेशंस में जाते हैं। तो अगर आपको एक विशेष सूचना है तो फिर ये जो चीज़ें उपलब्ध हमारे पास में वो पर्याप्त हैं। किसी भी संगठित दल को शून्य करने के लिए ये बल और इसके प्रहरी सक्षम हैं। अभी कुछ एक जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, जो गोपनीय सूचनाएं मिलती हैं, उनमें लीडर्स के नाम भी हैं और उनके लोकेशंस, सस्पेक्टेड प्लेसेस का भी जिक्र है। तो उसको इस वक्त कहना बहुत उचित नहीं होगा। बट जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए वो अंजाम दिए जा रहे हैं। अगर आप दोबारा कहें, मैं माफ़ी चाहूँगा, समझ नहीं। क्या चीज़ राशि कम है? प्रोत्साहन राशि की बात कर रहे हैं। प्रोत्साहन राशि किसके लिए? बीएसएफ के कार्मिकों के लिए। जो सफिशिएंट है हमारे साथ, आपके पास तो सारी जानकारी है। जो अलाउंसेस की बात कर रहे हैं आप, अलाउंसेस जो हैं उनको गृह मंत्रालय ने पूरी स्टडी करने के उपरांत निर्धारित किया है। और जो हमारे कार्मिक यहाँ डिप्लॉयड हैं उनको उसके अनुरूप ही वो राशि प्रदत्त की जा रही है। जैसे रिस्क एंड हार्डशिप है, तो जो रिस्क लेवल होता है और वहाँ के इलाके की हार्डशिप होती है, उससे वो डिटरमिन होती है। तो वो जो मैट्रिक्स जिस इलाके के लिए सरकार ने निर्धारित की हुई है, उन इलाकों में जो तैनात कार्मिक हैं उनको उसके अनुरूप वो राशि प्रदान की जा रही है। जी, लोकल यूथ को जिस तरह से माइंड डाइवर्ट करते हैं, वो माइंड वॉश करके जो अपने अगेंस्ट में शामिल करते हैं, उसको प्रतिबद्ध करने के लिए आपका कोई न्यू तरीका अपने लोगों के साथ बातचीत करना
इसमें कई चीज़ें हैं। देखिए आप तो 2010 और उससे पहले के परिवेश से पूरी तरीके से परिचित हैं। अगर आप देखें, पहले कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं था, चाहे वो रोड हो और चाहे हमारे जो कम्युनिकेशन के टावर्स हैं ना हो। शिक्षा के लिए स्कूल नहीं था, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कहाँ जाना पड़ता था। तो अब जब सब चीज़ें आ गई हैं और उसके बाद हमारी तलाश में जो हमारी कंपनीज़ हैं, वहाँ के कंपनी कमांडर्स और ट्रूप्स जो हैं वो भी ये खोजते हैं कि जो यंग बच्चे हैं इनके भविष्य को बेहतर करने के लिए हम इनको रिक्रूटमेंट के लिए सरकारी जो बाकी व्यवसाय हैं, नौकरी हैं, उनके लिए हम किस प्रकार से इनको ट्रेन कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट रैली, उसमें लोगों को फॉर्म भरवाना, उनको उसके परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण देना, ये सब चीज़ें शामिल हैं उसमें। बहुत से जो अभी हम लेके भी जाते हैं जो ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में, उन बच्चों को भी ले जाने का ध्येय सिर्फ यही है कि उनको दिखाया जाए जो विकसित जगह हैं वहाँ पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं, तो ताकि वो ऐसे किसी मार्ग में भटके नहीं। और जो निरंतर पेट्रोलिंग है दूरदराज गाँवों की, उसमें से जो हमारे ट्रुप्स जाते हैं उनका भी मेल मिलाप है ग्रामवासियों से, वो लोग भी हमारे पोस्ट पर आते हैं। तो इस तरीके से जो सही दिशा है एक अच्छे देशभक्त और एक अच्छे नागरिक के लिए, उसके लिए हमारे सैनिक और हम सब लोग उनको प्रेरणा देते रहते हैं और दिशा देते रहते हैं। Apart from Naxal operations, we are inducted purely for anti-Naxal operations and have been continuing since 2010. The mission is getting closer and closer, and the date 31st March 2026 will probably, before that we will last nail in the coffin, and thereafter, as the government feels regarding our further utility, that would be a direction from the government which we would comply as a true soldier. Yes, please, madam. Yes, ma'am. This time, this is the 17th Tribal Youth Exchange Program in area of Malkangiri. This has again been given to us, and we are coordinating for conducting it. I think some decision would have been taken in past to discontinue or to give to another force, but it has again been given to us because of our deployment in that area. So 17th program again we are conducting during this financial year. Yes, ma'am. सर, दूसरे स्टेट से अभी नजदीक में उड़ीसा पुलिस ने भी डिक्लेयर किया है कि जो माओवादी सरेंडर करते हैं उनका जो अमाउंट था उनको देने के लिए 10% इस हिसाब से ज़्यादा मैंने देंगे उड़ीसा पुलिस। तो इसको किस तरह से देखते हैं, इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या सर? जो माओवादी सरेंडर करते हैं वो ज़्यादा होंगे, उनका माइंड चेंज होगा सर? ये एक सरकारी निर्णय है और निर्णय आपको पता है, धन भी बढ़ा है। तो अगर आप इसको न्यूट्रल होकर के भी देखें तो जिसके प्रॉस्पेक्ट्स जहां बेहतर हैं, जहां मॉनेटरी बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, गिवन 2 ऑप्शंस, प्रोबेबली दे विल चूज दिस स्टेट। और ये चूज़ करते हैं तो हमारे पुलिस स्टेशंस हैं, हमारे अपने कैंप्स हैं, तो जहां कहीं पर भी कोई सूचना इस प्रकार की आती है तो वी विल फैसिलिटेट जो भी सरेंडर करना चाहते हैं। तो जो 10% ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसी से लोग आएंगे क्या? ये तो अब उनके ऊपर मुनस्सर है। हमारा ध्येय है कि हम आपको बेहतर दे रहे हैं, तो आप चुने इस राज्य को। तो एक पॉलिसी डिसीजन हुआ है और इस पर बहुत डिलिब्रेशंस होने के बाद ये निर्णय हुआ है। तो मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से जरूर उन्हें आकर्षित करेगा। ऑपरेशंस तो हो ही रहे हैं, तो सरकार दोनों मोर्चों पर तैयार है। सर, आपके रिपोर्ट कह रहे हैं कि 10 आईडीज, ये 148 लाइव एमुनेशन और 8 आर्म्स ये सीज किया गया है। उस हिसाब से नक्सल का गतिविधि अभी क्या आप देख रहे हैं उड़ीसा में?
नक्सल की गतिविधि जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में है, कोई 4 का 5 का। जैसे आदमी हताश होता है और फिर सोचता है कि चलो हम जहाँ कहीं पहले जाते थे, कोशिश करता है कि हम अपने आप को रीग्रुप कर सकें, या हमारा लॉजिस्टिक्स खत्म हो गया है, जंगल में तो है नहीं दवाई, खाना भी नहीं है, तो आपको कहाँ बेस्ड रहना पड़ेगा, जो विलेजेस हैं उनके ऊपर रहना पड़ेगा। तो एक तो आपकी हो गई लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, हेल्थ कंडीशंस भी, पीएफ मलेरिया भी होता है जंगल में, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से वो जो छोटे छोटे ग्रुप्स में हैं, वो ये भी है इस तलाश में भी कि हम किसी माध्यम से अपनी बात आगे कहकर अगर हम सरेंडर भी करना चाहें तो भी तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो ये वो जो है हल्के जो मूवमेंट्स आपको पता चल रहे हैं, ये वो हैं। और बाकी सुरक्षा बल सतर्क डिप्लॉयड हैं। तो ऐसी कोई हमको खबर मिलने पर दोनों ही तरीके की कार्रवाइयों के लिए हम तैयार हैं। की बात आप कर रहे थे जी, आपको लगता है क्या केकेबीएन का ऐसे कुछ हार्डकोर है जो चैलेंज है आप? देखिए, हमारे लिए उस जंगल में चाहे वो हार्डकोर हो और चाहे नॉर्मल आदमी हो, हमारे लिए जो सिखलाई है वो है एक गोली एक दुश्मन, जिसमें बीएसएफ ट्रेनिंग लेती है। तो वो हल्का फुल्का है या वो है जो हमको उसमें अपनाना है, जो हमारी टैक्टिकल ड्रिल है वो हमने अप्लाई करनी है उसके ऊपर। तो हम डील करते हैं, हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, ये मान करके कि हमको हार्डकोर ही मिलेगा। ये ब्रीफिंग है एक कमांडर की अपने ट्रुप्स के लिए। तो उस हिसाब से वो अपने साजो सामान के साथ सुसज्जित होकर मैदान में उतरता है। अब वो आप देख लें कि हार्डकोर हैं या कैसे हैं, वो मौके पर ही पता चल पाएगा। सीमा प्रहरी तैयार है। लास्ट के एक क्वेश्चन ले सकते हैं अगर कोई आखिर में आपको कोई सवाल हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, जिस वजह से ये वक्त बहुत ज़रूरी था और आपके साथ होकर ये आज का दिन हमारा अच्छा हुआ। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके से आप देश को, दुनिया को सही खबरों से रूबरू करते रहें। बहुत शुभकामनाएं आपके करियर के लिए भी। थैंक यू वेरी मच।